Hello friends, dear students, my name is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful channel Physics Lover. आज हम बात करेंगे the resistance. When the temperature of resistance is increased, then what happen? इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? What about the resistance of the semiconductor when the temperature is increased? So today we will discuss about the temperature dependency of the resistance. We already know that कि जो resistance होता है it depends on the length and the area of cross section. हमें पता है जो resistance है it is depend on the length and area of cross section. And one more thing, the nature of material. ठीक है? But what happen about the temperature? So हम बात करते हैं temperature dependency of resistors. The temperature coefficient of the resistors. Temperature coefficient of resistor. Yeah, we can also say that the effect of temperature on the resistors. देखें हम, ओके, आर यू रेडी? आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं. We initially found that when the temperature is increased, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? Resistance is increases. Generally we know that कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है. कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो हम देखते हैं. लेट R नॉट इज इनिशियल रेजिस्टेंस. इनिशियल रेजिस्टेंस ये क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस है एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज R नॉट. ओके, एंड फॉर द T टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज RT. फॉर T टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज, मान लेते हैं हम कि रेजिस्टेंस क्या होगा? R इंटू टी होगा. कैपिटल R इंटू टी होगा. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो हमारा जो फॉर्मूला होगा that is the RT, the temperature resistance at a temperature T is equal to R naught 1 plus alpha T plus beta T square. 1 plus alpha T plus beta T square, where alpha and beta are the coefficient of temperature resistance. Alpha beta का क्या है यहाँ पर? Temperature coefficient of the resistance है. Okay, but when we suppose when temperature is below 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जब 300 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उस कंडीशन में जो टी स्क्वायर इट इज नेग्लेक्टेड. टी स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, देन वी विल गेट RT is equal to R naught 1 plus alpha T. RT is equal to R naught 1 plus alpha T. So what happen? We can easily find the value of alpha. यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा? RT minus R naught plus R naught alpha T. Okay. So what we are getting? We are getting RT minus R naught upon R naught into T is equal to alpha. क्या मिला हमें? Alpha is equal to RT, the resistance at temperature T, minus initial resistance upon R naught into T is equal to alpha. Where alpha क्या है? Alpha is temperature coefficient. Temperature coefficient of resistance.
अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस। ओके, तो अल्फा क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। सो व्हाट इज दे डिफाइन, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस, इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। कि हम क्या कर रहे हैं, जब रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन इट्स रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, so we can easily say that it is equal to the increase in resistance of a conductor of resistance 1 ohm when its temperature is increased by 1 degree Celsius. Increase in the resistance of a conductor by 1 ohm when 1 degree Celsius temperature is increased. क्या कह सकते हैं हम? The temperature coefficient of resistance of a substance is equal to, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेसिस्टेंस by 1 ohm when temperature is increased by 1 degree Celsius, when temperature is increased by 1 degree Celsius। कि जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना बढ़ जाएगा? 1 ओम इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो आपका रेसिस्टेंस है, इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू होती है इज अ कांस्टेंट। The value of alpha is constant for all the metals. अल्फा की वैल्यू क्या होती है? सभी मेटल्स के लिए कांस्टेंट होती है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट। ठीक है, मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फॉर द मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, बट फॉर द सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। मींस आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर में तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बढ़ती है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, सो क्या कहा मैंने? हम लिख लेते हैं। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन, आप लिखें इसे। ओके, चलें, तो हम कह रहे हैं अल्फा इज पॉजिटिव फॉर द मेटल्स। व्हाट वी गेट, आवर फॉर्मूला इज RT is equal to R naught 1 plus alpha T. अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव फॉर मेटल्स। जितने भी मेटल्स होंगे उसके लिए अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लाइक सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। इट मींस आपने अल्फा को यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रखी तो RT क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस हम क्या कह सकते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इंक्रीजेस। रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? when the temperature is when the alpha is positive for metals. Okay, for the semiconductor alpha is negative.
second point for semiconductor, alpha is negative. It means हम क्या कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा. resistance of semiconductor decreases with increase in temperature. Okay, रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. Okay, for semiconductor alpha is negative. The resistance of the semiconductor decreases with increase in temperature. What about alloys? जो alloys होते हैं, ठीक है, alloys जो होते हैं उनका क्या होता है, ये भी तो एक पॉइंट है. What about alloys? जो alloys बनाए जाते हैं उनमें क्या होता है, it is a very small for alloys. अल्फा इज वेरी स्मॉल. अल्फा क्या होता है, वेरी स्मॉल. अल्फा बहुत कम होता है. जैसे एलॉय कौन सा हो सकता है, लाइक मैंगनीज, टंगस्टन. क्या है, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, टंगस्टन, यूरेका. मैंगनीज, टंगस्टन, यूरेका, कंस्टेंटन, ठीक है, कंस्टेंटन, ये सभी क्या है, एलॉयज है. और एलॉयज में क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है. एलॉय का जो अल्फा वेरी स्मॉल होता है, अल्फा इज वेरी स्मॉल. इट मींस उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो कम है, उस वजह से उसका रेसिस्टेंस कम है. बट रेसिस्टेंस कम होने से क्या होगा, रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई. द रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई अल्फा. ओके, सो राइट डाउन. ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस. ओके, चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड. तो आप तैयार हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर इज 0 डिग्री सेल्सियस इज 3 ओम. मतलब हमें क्या दिया है, R0 दिया है, कितना, 3 ओम. एट 100 डिग्री सेल्सियस इज R100 हमें दिया है 3.75 ओम. इट्स रेसिस्टेंस एट द अननोन टेम्परेचर इज, अननोन टेम्परेचर पर इसका जो रेसिस्टेंस है दैट इज 3.15. कितना है, 3.15 ओम. वी हैव टू कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर. हमें क्या करना है, हमें अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है. सो व्हाट वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है दैट इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. R0 1 प्लस अल्फा टी मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा, RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी. RT माइनस R0 R0 अल्फा टी मिला. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, सेकेंड इक्वेशन हमें दी है 100 टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और R0 ये भी तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, रेसिस्टेंस का डिफरेंस हुआ, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये कितना है, इट इज आल्सो गिवन टू अस, ये है R0. ये कितना दिया है हमें, R0 अल्फा. टेम्परेचर यहाँ पर दिया है आपको 100, टेम्परेचर इज 100. दैट इज द सेकंड इक्वेशन. तो हमें क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड.
फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो एंड वी विल गेट आवर आंसर RT minus R0 upon R100 minus R0 is equal to P by 100, क्योंकि R0 अल्फा कैंसल से चला, ये दूसरे को कैंसल कर देंगे। यस और नो? यस। RT आपको क्या दिया है 3.15, R0 3.00, R100 3.75 minus 3.00 P upon 100. So what we are getting, हमें मिला यहाँ से 0.15 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 0.75 into 100 is equal to T। ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा into 100 into T। सो ये कैंसिल होंगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ओके, 5 1 जा 5, 5 1 3 जा 100। So the temperature is 20 degree Celsius, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 3.15, ओके। सो दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक।